Hello friend, how are you? Welcome to Tripan Study Center. We are going to do today is very important MCQ which will be a very important for the exam point of view. And it will be important for this competitive exam. Let's see what is our topic today. Today we discussion most important chapter here, water resources. The water resources the most important MCQ arrive here. Class 10 CBSE NCERT social science here. This is the most important chapter for the exam view here. You know that the question arrive here MCQ here. Which of the following is a sources of fresh water? The question is clear here. Which of the following is a source of fresh water? First here A. Precipitation. B. Surface runoff. C. Groundwater. D. All of the above. You know that there is a most important here. Come on, test your knowledge first of all. I give you few seconds for understanding this question you and choose the question. You choose the option? Great. You must have the thought of your answer. Let's see what is our answer of this question. You know that the question understand you? Which of the following is a source of fresh water? Precipitation. Precipitation, there is a fresh water source, nothing here. Surface runoff, not about thing. And all about the nothing because precipitation and surface runoff is here cancel out. But C answer is correct here. Groundwater is a fresh water. But there is a not of also is a fresh water. But the reason is here the groundwater also is a polluted here. But MCQ here types the answer is here fresh water. Surface of fresh water is here groundwater. The option C is correct answer ground water. And let's see next questions here. You know that on your screen there is arrives the most important question here. In which one of the following states was a rooftop rainwater harvesting pesticide here? You know that is an important question here for the exam view. In which one of the following state was a rooftop rainwater harvesting pesticide here? That's important here for the exam view. A. West Bengal. B. Haryana. C. Rajasthan. D. Punjab. You know that's important. I give you few seconds. Test your first of all knowledge and write the correct answer for your notebook. You must have a thought of your answer. Let's see what is the answer of these questions. You know that you consider understand in which one of the following state was a rooftop rainwater harvesting. Rooftop rainwater harvesting only here a desert area. Reasons being there is a less water here. You know that the option A West Bengal is rejected. B Haryana is also rejected. Punjab also rejected. The answer is C Rajasthan. Because Rajasthan is the rainwater harvesting is important because there is a rainfall is a very less amount of this area. So the C option is correct here. The Rajasthan state was a rooftop rainwater harvesting pesticide here. And the let's see next question. So important. You know that the next question I have on the screen. There is an important question here. Which one of the following rivers the Tehri Dam is beginning constructed? You know that the question understand you. The question is clear here. Which one of the flowing river the Tehri Dam began to constructed? There is A. Bhagirathi. B. Yamuna. C. Koshi. D. Satluj. The option is the most important. Choose or option. The four options. One here is correct. Who is the correct? Choose. I give you few seconds for test your knowledge. You know that you must have a thought of your answer.
Let's see what is our answer for this question here. You know that the question is clear here. River the Tehri Dam is beginning constructed. The river's name here. Bhagirathi is not applicable this answer. Yamuna, there is not a Tehri Dam. Kosh is nothing here. The Satluj is the right answer. The Satluj is important answer for this question here. The Satluj here constructed for the Tehri Dam. That's important. And the next questions here. Next question on your screen. The question here: what is the contribute of hydroelectricity in there is a total generation of electricity? You know that the question is clear. What is the contribution of hydroelectricity in the total generation of electricity? That's important here. And reminder question here. A option 52%, B is 42%, C 32%, D 22%. That's the most important here. And let's a few seconds for test your knowledge first of all. You must have a thought of your answer. Let's see what is the answer for this question here. The question you understand? What is the contribute of hydroelectricity in there is total generation of electricity? You know that the answer here is important. The answer here 22%, because directly answer given here because there are percentage. There is D 22%, not a 52, not a 41, 42, not a 52, not a 32. 22% the energy contribution of hydroelectricity in there is total generation of electricity. The answer D 22%. Let's see next question here. The next question on your screen, the question here: bamboo drifts irrigation is prevalent in which of the following state? The bamboo drip, that's the most important here. Bamboo drifts, that's the most important. There is the bamboo. Bamboo drifts irrigation is prevented in which of the following state? Rajasthan, Meghalaya, Karnataka, Madhya Pradesh. The option is the most important. I give you a few seconds for you to test your knowledge first of all. You must have a thought of your answer. Let's see what is the answer this question here. You know that the question clear here. Bamboo drip irrigation prevent which state? A. Rajasthan, B. Meghalaya, C. Karnataka, D. Madhya Pradesh. You know that bamboo drips irrigations only the state is important is the Meghalaya. The Meghalaya is the most important here. Meghalaya has here bamboo drip irrigation. There is a not a Rajasthan, not a Karnataka, and not a Madhya Pradesh. The option is B is correct here. Meghalaya. The Meghalaya is here. That's important. The Meghalaya is bamboo drips irrigation is prevent in which there are state here. The Meghalaya. Next question. Next question on your screen. The question here: which of the following structure are known as the tankas? Tankas, that's important here. Which of the following structures are known as tankas? The A. Underground tank from the storing to rainwater, harvesting from rooftops of drinking purpose. You know that. Second here, tanks constructed on the rooftop of storing the rainwater. C here, tank constructed in the agriculture field to be store rainwater. And D, tank constructed to be store flood water. You know that's the fourth option. This is the most important. You choose a fourth one option here. I give a few seconds for the test your knowledge. You know that you must have a thought of your answer. Let's see what is our answer for this question. The question is clear here. Structure are known as the tankas. The D, tanks constructed to be stored of flood water, is not applicable this answer. There is not applicable here this answer. The tank constructed is agriculture field to be stored rainwater. Tankers not used here. And B, tank constructed on the rooftops of storing rainwater.
That's nothing answer here. The answer here A. A here underground tanks for storing rainwater harvested from rooftops for a drinking purpose. That's important answer for this question here. The answer clear here? Underground tank for the storing rainwater harvested from rooftops for a drinking purpose. That's important here. And the next question here. The next question arrive here. The question is which one of the following statements is not a agreement in favor of multi-purpose river project. Know that the question is clear here. Which one of the following statement is not on agreement in favor of multi-purpose river project? Option A, multi-purpose project bearing water to those area which is suffer from to the water scarcity. B here, multi-purpose project by regulating water flow help to be control flood. C here, multi-purpose project lead to be large scale displacement and loss of livelihood. And D, multi-purpose project is generate electricity for our industry and our home. You know that is a question is the most important for the exam view and the all competitive exam also. I give a few seconds for your understanding, test your knowledge and choose option here. You must have a thought of your answer. Let's see what is our answer for this question here. The statement is not agreement. You question understand? The statement is not agreement in favor of multi-purpose river project. That's important question here. The answer, multi-purpose project bearing a water to those area which is suffer from water scarcity is nothing applicable here answer. Multi-purpose project for regulating water flow help to be control flood. That's nothing. And multi-purpose project generate electricity for our industry and our home, nothing. But answer here C. The answer is C. Multi-purpose project lead to be large scale displacement and loss of livelihood. That's important here. The multi-purpose project lead to be large scale displacement and loss of livelihood. That's important answer for this question. The answer is a C. Let's see next question. Next question on your screen. The question is important here. The question here, this is not a source of fresh water. You know that the question is clear here. This is not a source of fresh water. The option here, glacier and ice sheet. B, groundwater. And C, surface runoff. And D, ocean. You know that B is already rejected here. There is a competition is A and C and D option. I give a few seconds and test your knowledge first of all and not answer for the notebook. You know that you must have a thought of your answer. Let's see what is our answer for this question. The question is clear here. This is not a source of fresh water. Clear? There is a rejected groundwater here. You know that I already rejected groundwater here. And glacier ice sheet, there is important water here. There is a fresh water, glaciers and ice sheet. And surface runoff is also is important rainwater. But ocean is not a source of fresh water. The clear answer D. The answer is D, ocean. Ocean is not a source of fresh water. You know that's an important answer. Let's see next question here. Next question on your screen. The question here, according to Flacken mark, water stress occur when? You know that you first of all understand according to Flacken mark. There is a Flacken mark that is important. And he say the water stress occur when? A, water ability is less than 1000 cubic meter per person per day. Yeah, B, there is no water scarcity. C, there is a flood. And D, water ability is more than 1000
1000 cubic meter per person per day. The option is important. I give you few seconds. First of all, test your knowledge. You must have a thought of your answer. Let's see what is our answer for this question here. You know that according to the Flecker mark, there's a the Flecker's mark. There is a most important thickness here, and he said that there is a water ability is a more than 1000 cubic meter per person is a not applicable here. That is a wrong. More than nothing here. There is a flood, not applicable answer, and there is a no water scarcity, not ask the Flecken mark. The Flecken mark asks a water ability is a less than 1000 cubic meter per person per day. According to Flecken mark, the water stress occur when the water ability is a less than 1000 cubic meter per person per day. So option A is correct answer for this question. Answer A is correct here. Let's see next question here. The next question arrive here. That's important. Question is important because there is a not a 4 option. There are 6 option. You know that choose an important answer for this option. That's important here. You know that which of the following are not cases of water scarcity. Question is clear. Not a causes of water scarcity. A. Growing population. B. Growing of water intensive crop. C. Expansion irrigation facility. D. Individuals well and tube wells in a farm. The E. Water harvesting technique. F. Industries. You know that the question that is important. I give you a few seconds. Test your knowledge. I also is ask here to answer which is correct here. Choose you. You must have a thought of your answer. Let's see what is the answer for this question. The question first of all you understand which of the following are not a case of water scarcity. Water scarcity not a case here. Case not a case. You know that. The growing population the case here. You know that population growing is a scarcity here. Water scarcity is important. But question asks the not a cases of. A growing a population is causing here. Growing of water intensive crop they are causing here. Expansion irrigation facility they are causing a water scarcity here. Individual well and tube wells form there is a here causing a water scarcity. But water harvesting technique and industry is not a causing of water scarcity. You mean two answers is correct here. E and F. You write down E and F. There is a most important answer for this question. There is a E and F is not a causing of water scarcity. That's important here. And let's see next question. The next question arrive here. That's important. The question here. Bhakra Nangal River Valley project is made on the river. You know that's important for the all exam view here. Bhakra Nangal Rivers Valley project is made on the rivers here. A option Satluj Byas, B Ravi Chenab, C Ganga, D Son. You know that's an important question for the exam view here. The question is clear here. Bhakra Nangal River Valley project made on the river. I give a few seconds for you. First of all, test your knowledge. Okay? You must have a thought of your answer. Let's see what is our answer for this question. The Bhakra Nangal Valley project is made on the river. There is a sun is rejected here. And D. Ganga. Bhakra Nangal is not about the project of Bhakra Ganga. And also here, Ravi and Chenab nothing. The answer is A here correct. The answer A, Satluj and Vyas. Bhakra Nangal River Valley project is made on the river. Satluj and Vyas is the most important here. And the next question here. The next question there is important here. A question here.
Hirakund Dam is constructed on the river. You know that the question is clear here. Hirakund Dam is constructed on the river. The option here A. Ganga, B. Manjira, C. Manas, D. Mahanandi. You know that's an important question for the exam view here and also competitive exam. I give a few seconds. Test your knowledge first of all. You know that you must have a thought of your answer. Let's see what is the answer for this question. The question is clear. Hirakund Dam is constructed on the river. Where is it constructed? Ganga, Manjira, Manas, Mahandi. That's an important option here. You know that the Hirakund Dam is not a Ganga has constructed here. Means Ganga is reject. And B, Manjira is also reject and Manas rejected. You know the Hirakund Dam is constructed on the river Mahanandi. Mahanandi, that's the most important D option is correct here. The D is the correct answer for this question. That's important for the exam view here. The Hirakund Dam is constructed on the river Mahanandi. That's important. The next question arrive here. That's important. The question here. Water of Bhakra Nangal project is beginning use of mainly for. You know that's important here. The water of Bhakra Nangal project is begin use of mainly for. The option here A. Hydropower and irrigation. Hydropower and irrigations. B. Fishing, breeding and navigation. C. Industry uses. And D. Flood control. Bhakra Nangal project beginning use of mainly for. The question is very important for the exam view and all competitive exam also. I give a few seconds. You understand what is the correct answer on this four option here. Test your first of all knowledge. You must have a thought of your answer. Let's see what is the answer for this question. The question is clear. Water of Bhakra Nangal project is begin use of mainly for. Here. You know that flood control is nothing here. Not a purpose the flood control. Industry uses is a nothing here. And fish breeding and navigation that are not. Means there is a main option is A. Hydropower and irrigation. There is a main purpose for the use of Bhakra Nangal project here. The answer A is correct. Hydropowers and irrigation. There is a main project of beginning use of here a Bhakra Nangal project. That's important. And let's see next question. The next question that's important. The question here. The diversions channel sea in the western Himalaya are called. The diversions channel seen in the western Himalaya are called. The question is clear. This is called A. Gul or Khul, B. Khadin, C. Johaz, and D. Recharge speed. That's important option. I give a few seconds for test your knowledge. Come on. You know that you must have a thought of your answer. Let's see what is our answer to this question. The question you understand the diversion channel seen in the western Himalaya are called. That's the question is clear here and direct. There is recharged beat. This is not about applicable this answer. And Johad is a nothing. And Kadain, there's a nothing. There is the river channel is seen in the western Himalaya are called Guls and Kul. That's our right option here. The answer A is correct here. Guls are Kul. The option A, Guls are Kul. There is a most important answer for this question. And the next question here. Agriculture field which are used are rainfield storage structure is called. You know that question understand? The question here agriculture field which are used as a rainfeed storage structure is called. Called is a Kul, B is a Khadin, Jad, C recharge pit, none of the above. The question is correct here, but
I give a few seconds, test your first of all knowledge here. You must have a thought of your answer. Thought over your answer? Let's see what is our answer for this question here. The question understand? The agriculture field which are used or rain feed storage statue is called. This is not a called cools, not a called discharge pit. And none of this also reject. The answer is here the B. Khadin Juhad. That's important answer. The correct answer is B. Khadin Juhad. That's important. And let's see next question. The next question on your screen, the question here, underground tank seen in Rajasthan to store the rainwater for drinking is called. What is called here? Underground water seen in the Rajasthan to store the rainwater for a drink is called. It's called tankas, khadin, pound, school. Know that there is a most important question for the exam view here. I give you few seconds. Test your first of all knowledge. You must have a thought of your answer. Let's see what is the answer for this question. That's an important question for the exam view here. You know that underground tanks in the Rajasthan to store the rainwater for a drink is called. Not a call to cools, and not a call to pond, and not a call to the khadin. The answer is a clear cut tankers. That is a called tankers. A tankers, a groundwater tank. See there in Rajasthan to be stored rainwater drink is called is a tankers. That is A option is correct here. The next question, there is an important the question here. In Western Rajasthan, today plenty of water is available due to. Know that the question is clear. In Western Rajasthan, today plenty of water is available due to A. Rooftop water harvesting, B. Provincial Rajasthan Canal, C. Construction of the tank, and D. None of the above. This is the most important. I give a few seconds, test your first of all knowledge. You must have a thought of your answer. Let's see what is the answer for this question. You know that the question you understand. Western Rajasthan today plenty of water is available due to. The reason here due to. Know that the question is clear. The rooftop water harvesting, nothing here. Construction of tank, not applicable this answer here, none of the also here, but answer is just B. The answer B. Perennials Rajasthan Canal. That is the most important for the Western Rajasthan today plenty of water is available due to Perennial Rajasthan Canal. That's important here. The next question arrive here, that's important. The question here, what percentage of total volume of world's water is estimated to exist as an ocean? You know that the question is clear here. What is the percentage of total volume of world's water is estimated is exist as an ocean? The question is the most important for the exam view here. You know that A is 94.5%, B is 95.5%, C 96.5%, and D 97.5%. That's important. I give you few seconds for the test your knowledge. Choose a four option. The one option is here. You must have thought of your answer. Let's see what is our answer for this question. The question is clear here, but understanding is important. Question about the percentage of total volume of the world water estimate is stated is ocean. You know that the answer is clear here. C 96.5. Remember that C 96.5%. That's the correct answer. 96 point C. The C answer is correct. 96.5%. The next question here. The next question arrive here. This is important. And question here. The only state which has made a rooftop rainwater harvesting structure compulsory to all the houses is. You know that the question is clear here. The only state which had made a rooftop rainwater harvesting structure compulsory to all the houses is. The option here
ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटका, सी तमिलनाडु, डी वेस्ट बंगाल. You know that is the most important. But first of all, I give a few seconds for you. Test your knowledge. That is important. You know that you must be have thought of your answer. Let's see the answer this question. The question you know that understand the only state which has a made of rooftop water harvesting is status compulsory. Means compulsory. That is important question here. The Andhra Pradesh is not applicable. Andhra Pradesh is not a compulsory here. Karnataka is not a compulsory. And West Bengal, nothing is compulsory. But here answer is C, Tamil Nadu. The next question arrive here, that's important. A question here. The remote village that is in the rear destruction of began rich in a rainwater. You know that is a question is clear here. The remote village that has in the rear destruction of beginning rich in a rainwater. The option here Gary, B is a Kaza, C is a Zendo, Thor, and D is a none of the above. You know that is the most important option here. But first of all, you test your knowledge. I give you few seconds for you. You must have thought of your answer. Let's see what is the answer for this question. You know that this question is clear. The remote village that is in the rear destruction of beginning rich in rainwater. The option Gary, Kaza, Jandhathar, none of the above. That's important here. But answer is Gary is nothing and Kaza is not applicable and none of the above is not a thing. But answer is a Jandhathar. Jandhathar is the right answer. It means the remote village that is has hidden to the rear destruction or begin rich in the rainwater is a Jandhathar. The C is the correct answer. C tick on your notebook. The C answer is correct here. The next question arrive here. That's important. And question here. Which one of the following is not a adverse effect of regression? You don't have. That's important. In which of following is not an adverse effect of irrigation? The option here irrigation change cropping pattern A and the B water intensive crop are growing in a dry area and C sensation of soil and increase the crop yard. That's important option. And first of all, you test your knowledge. IQ knowledge is important. I give a few seconds for you. You know that you have a must have a thought of your answer. Let's see what is our answer for this question. The question you understand which one of the following note on adverse effect of irrigation. That's important questions here. You know that the first option irrigation changes the cropping pattern. That's not applicable in this answer here. A is rejected here. Irrigation changes the cropping pattern is not applicable. And B here, the water intensive crop are growing in a dry area. That's not applicable. The water intensive crops are growing in the dry area. And C, salination of soil. Salination soil, this is not applicable. The answer is a D here is correct. Increasing crop yard. Increasing crop yard is important. The irrigation is important. The increasing crop yard. The C, D is answer is correct. D answer is correct here for this question. You know that not your notebook. The D answer is correct here. And next question here. The question here: which of the following social movement are not a resistance of multi-purpose project? That's important question here. That's important. Which of the following social movement are not a resistance to the multi-purpose project? A. Narmada Bachao Andolan. B. Tehri Dam Andolan.
C. Navadyana, and D. Chipko moment. That's important option for the exam view. You know that you test your IQ level first of all. I give you few seconds for understanding you this question here. You must have a thought of your answer. Let's see what is our answer for this question here. Know that is the question is the most interesting. The most interesting because which of the following social movement is are not resistance to multi-purpose project? Narmada Bachao Andolan, there is a multi-purpose project, and Tehri Dam Andolan is a multi-purpose project. But Navadyan and Chipko movement, there is two movement, there is a social movement, are not a resistance to a multi-purpose project here. It means two option is correct here on this question. C and D correct here. That is imagine here. Know that question asks these types of question. That's important. The answer is a C and D. Navadyan and D Chipko moment. C and D is correct answer for this question here. The next question arrive here. That's important. And question here. Which of the flowing river is not having any multi-purpose sewage project? You know that is a question is clear here. Which of the flowing rivers is not having any multi-purpose river project? The option is Satluj Bias, B Navadix, and C Narmada, D Yamuna. That's important, but you test your knowledge first of all. I give a few seconds for you. You must have a thought of your answer. Let's see what is our answer for this question. You know that is a question is clear here. Which of the following rivers are not having any a multi-purpose river project? Not having any multi-purpose river project. The question is clear here. You know that Satluj Bias is here a multi-purpose project, and Namadis is a multi-purpose. B is a multi-purpose, and Narmada is also multi-purpose. But the mind is a D option is here. Yamuna is a project is a not having any multi-purpose river project here. The option D is correct answer for this question here. The answer Yamuna is correct answer for this question. That's right. The next question on your screen, the question is the most important here. And question here, which of the following problem arise due to the water pollution? You know that is the question is important. Which of the following problem arise due to the water pollution? A. Sedimentation of water bodies. B. Waterborne disease. C. Discharge of industry waste. And D. Spanning of aquatic life. You know that is the question is clear here. But first of all, test your knowledge. I give a few seconds. Choose a correct answer. You must have a thought of your answer. Let's see what is our answer for this question here. The question is clear here. Which of the following problem arise due to water pollution? The water pollution is here, sedimentation of water bodies, that's not a problem causing here. Swimming of aquatic life, that's nothing. And discharge of industry waste, there is a problem arise due to the water pollution here. But B is the correct answer. Waterborne diseases. Waterborne diseases here due to the water pollution. The B is correct answer for this question here. The waterborne disease is a correct answer. You note your notebook a B, waterborne diseases. And next and last question here. The next question arrive here on your screen. There's an important question. The question here, which of the following data show the percentage of global precipitation that are received by India? You know that there's an important question here. Which of the following data show the percentage of global precipitation that is received of India? The option here 96.5%, B 30%, C 4%, D 2.5%. That's important here. But first of all, you choose of this answer because you test your knowledge. I give you a few seconds for you.
You must have a thought of your answer. Let's see what is our answer for this question here. Question is here clear. Which of the following data show the percentage of global precipitation that is received by the India? You know that the answer is here a C 4%. The C is a 4% here. The 4% data show there is global precipitation that is received by the India. The answer is a 4%. Note your notebook is a 4% is the correct answer. The next question is the most important for the exam view and your knowledge also, and competitive exam is also here. यहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, जल संसाधन। कक्षा 10वीं CBSE NCERT सोशल साइंस का यानी सामाजिक विज्ञान का भूगोल का यहाँ पर जो है चैप्टर जल संसाधन। और देखा जाए तो इसी के अंतर्गत जल संसाधन के अंतर्गत हमारा यहाँ क्वेश्चन जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। और क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा ताजे पानी का स्रोत है। क्वेश्चन से समझ में आपको आ रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ताजे पानी का स्रोत है। क्या वो वर्षा का पानी है, या सतही अफवाह है, या भूजल है, या उपयोग सभी हैं। तो यहाँ क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही क्लियर है कि कौन सा ताजे पानी का स्रोत है। देखिए हिंदी में करोगे तो थोड़ा सा हिंदी में होता है कि शुद्ध हिंदी होती है, जहाँ पर आपको बहुत कन्फ्यूज़न का सामना करना पड़ सकता है। तो आप अपना आंसर देखिए और अपने नोटबुक पे नोट कीजिए, ठीक है, क्योंकि आप करिएगा तो काफ़ी सही रहेगा। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पानी ताजे पानी का स्रोत है। देखिए वर्षा का जल जो होता तो प्योर है, लेकिन धरती पे आते ही वो अनप्योर हो जाता है, क्योंकि धरती पर जब मिट्टी से मिलता है तो अनप्योर हो जाता है। सतही अफवाह जो होती है वो भी एक तरह का जो है अनप्योर जल है। तो ए और बी तो हो नहीं सकता। जब ए और बी नहीं हो सकता है तो इसका मतलब डी भी नहीं हो सकता, क्योंकि उपयोग सभी का मतलब हो कि सारे सही होना चाहिए था। तो ए और बी के रिजेक्ट होते हैं, यानी एक भी रिजेक्ट हो गया, पहला अगर रिजेक्ट हो गया तो मान लीजिए ए और डी तो रिजेक्ट ऑटोमेटिक हो गई थी। लेकिन बी जो है सतही अफवाह ये भी नहीं है। हमारा आंसर यहाँ पर जो आता है क्लियर होके वो है सी भूजल। यानी निम्नलिखित में से कौन सा ताजे पानी का स्रोत है, तो सी भूजल है। क्योंकि आपको पता है कि ग्राउंड वाटर जो होती है काफ़ी महत्वपूर्ण होती है और सभी जगह जो है भूजल ही उपयोग किया जाता है। धरती से जो है पानी निकाली जाती है नलकूप के द्वारा, कुएं के द्वारा या ट्यूबवेल के द्वारा। तो बहुत सी सुविधाएं जिनके द्वारा पानी हम धरती से निकालते हैं, जो कि ताजे पानी के स्रोत के रूप में देखा जा सकता है। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आगे जो हमारे समक्ष क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में छत पर वर्षा जल संग्रह का अभ्यास किया गया था। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में छत पर यानी फ्लोर पर वर्षा जल संचलन करने का अभ्यास किया गया था। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, बी हरियाणा, सी राजस्थान, डी पंजाब। तो ये आपके चार ऑप्शन हैं। आप सबसे पहले आंसर अपना चूज़ कीजिए कि कौन सा आंसर सही होगा। इससे आपकी नॉलेज की परख हो जाती है। आपने चुन लिया होगा तो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा क्लियर कि किस राज्य में छत पर वर्षा जल संचलन का अभ्यास किया गया था। यानी होती नहीं, सिर्फ अभ्यास की गई थी। तो यहाँ क्वेश्चन क्लियर है, समझ के लिए है। देखिए पश्चिम बंगाल में वर्षा की जल की संग्रह करने की ज़रूरत तो है नहीं, और हरियाणा में भी वर्षा का जल संग्रह करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हरियाणा में भी अपना एक नदी बहती है, यमुना नदी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे हरियाणा वालों को पानी मिल जाता है। और पंजाब तो आपको पता ही है कि 5 नदियों का समूह कहा जाता है, तभी इसका नाम पंजाब पड़ा। तो यहाँ पर देखिए अगर हम जनरली अगर एलिमिनेट करें तो हरियाणा तो एलिमिनेट हो जाता है, पंजाब भी एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर छत पर वर्षा संग्रह करने का तो मतलब ही नहीं उठता, क्योंकि यहाँ पर अपनी एक नदी है जो पूरे साल जो है बहती रहती है। और पश्चिम बंगाल में भी आपको पता है गंगा जो पश्चिम बंगाल से ही होते हुए जाती है। तो यहाँ पर भी पानी संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। तो आपका आंसर क्लियर है
कि आंसर सी है राजस्थान। यानी राजस्थान में छत पर जो है वर्षा के जल जो है इकट्ठा करने की प्रावधान है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम व्यू से बन जाता है। क्वेश्चन क्लियर होता है, सिर्फ समझना जरूरी है और उसके आगे लेके चलना जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिख रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी पर टेहरी बांध का निर्माण किया जा रहा है। देखिए, अगर आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होगा तो झट से आंसर दे दीजिएगा, नहीं पता होगा तो कन्फ्यूजन में रहिएगा। क्वेश्चन क्लियर है कि किस नदी पर टेहरी बांध का निर्माण किया जा रहा है। क्या ए भागीरथी पर, बी यमुना पर, सी कोसी पर या सतलुज पे। अब देखिए, जिन बच्चों को पता होगा वो फटाक से आंसर दे देंगे, तो आप अपना नोट कर लीजिए आंसर कि इनमें से कौन सा सही है, जो काफ़ी आपके लिए जो नॉलेज के लिए काफ़ी ज़रूरी रहेगा। तभी मैं यहाँ पर आंसर शो नहीं करता हूँ कि आप पहले ही पता कर लोगे, ठीक है, क्योंकि इससे ये होता है कि आप अपना नॉलेज भी लगा सकते हो। अब चलिए, आपने अपना नोट कर लिया होगा। लेकिन निम्नलिखित किस नदी पर टेहरी बांध का निर्माण किया जा रहा है। देखिए, हमने जितना जाना है भागीरथी पर तो है नहीं और यमुना पर भी नहीं है। कोसी नदी तो आपको पता कि बिहार के साइड बहता है, जो कि बंगाल साइड से निकलता है, यानी नेपाल उपाल के साइड से जो है इसकी नदी की प्रभाव रहती है। तो यहाँ पर टेहरी बांध बनाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो देखा जाए तो ए और बी सी जो है एलिमिनेट है, यानी इसका आंसर ए बी सी नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर डी है। सतलज पर जो है टेहरी बांध का निर्माण किया जाता है और ये कई जगह पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है, चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। देखिए, कंपटीशन की तैयारी का जो क्वेश्चन होता है ना, वो 10वीं बेस से उठाया जाता है। 10वीं 12वीं के MCQ से ही उठाए जाते हैं, क्योंकि 10वीं और 12वीं के बाद ही बच्चे को जो है सरकारी जॉब या किसी भी जॉब के लिए एप्लीकेशन भरना पड़ता है। तो ये सारे 10वीं और 12वीं बेस ही होता है, मैक्सिमम 10वीं ही रहता है। और हम तरह तरह की किताबें पढ़ते रहते हैं। अगर हम सिलेबस के अंतर्गत अगर अपने NCERT को ही फॉलो कर लेना तो आप कोई भी कंपटीशन को जो है क्रैक कर सकते हो। तो ये ज़रूरी भी है, ये उन बच्चों के लिए भी जो ज़रूरी है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो है तैयारी करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि टेहरी बांध जो है सतलुज नदी पर बनाई जा रही है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं इसके अंतर्गत अगला क्वेश्चन अब क्या आता है हमारे समक्ष। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा जो है अगला क्वेश्चन भी आ गया है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ क्वेश्चन क्लियर है कि कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है। ये देखिए, क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आंसर देना पड़ेगा, इसमें एलिमिनेशन मेथड हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये नॉलेज की बात है, ये नॉलेजेबल क्वेश्चन है और ये करने से ही आपको आएगा कि कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना, जल विद्युत से हमें कितना विद्युत प्राप्त होती है, यानी जल से जो विद्युत बनती है। जैसे आपको पता है कि भाखड़ा बांध जो है जल में जो है इसी के उपयोग के लिए बनाया गया है बिजली उत्पादन के लिए। ऐसे ही बहुत से बांध हैं जो बिजली उत्पादन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जल भी एक स्रोत है जिससे हम बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। और पवन ऊर्जा के बारे में तो जानते ही होंगे आप लोग, तापीय ऊर्जा के बारे में भी जानते हो, ये भी विद्युत उत्पन्न करने का एक साधन है। लेकिन हमारे समक्ष पूछा है कि विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान हमारे लिए कितना प्रतिशत है। तो ऑप्शन है 52% है, बी 42% है, सी 32% और डी 22% है। देखिए, एक बात तो यहाँ क्लियर है, 52% तो हो नहीं सकता, 52% तो हो नहीं सकता, क्योंकि 50% हमें जल से तो नहीं मिलती है। ये तो मैं कंफर्म और 100% कह सकता हूँ, क्योंकि अगर जल से हमें मिलती तो कोयले की आवश्यकता नहीं पड़ती विद्युत उत्पन्न करने के लिए, और मैक्सिमम विद्युत उत्पादन जो होती कोयला से ही हो रही है। तो मैं आपकी सुविधा के लिए जो है यहाँ पर ए और बी को एलिमिनेट करता हूँ कि 42% भी नहीं होगा, क्योंकि ये काफ़ी नज़दीकी मामला है। तो आपका जो है ए और बी मैं पहले एलिमिनेट कर दिया हूँ। अब देखिए, आप लगाइए, 2 ऑप्शन है सी और डी, इसमें से आंसर क्या हो सकता है। अब तो आसान है, करिए, अपना कॉपी पर नोट डाउन कीजिए, बाद में आप चेक कीजिएगा कि आपका आंसर कितना सही गया कितना गलत गया। तो आप अपना आंसर लगा चुके होंगे। तो देखिए, विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है, तो मैंने पहले ही आपको कहा था 50% तो है नहीं, 42% भी नहीं है। द्वंद्व हमारा सिर्फ 2 ऑप्शन में रह गया था, सी 32 और डी 22 में। तो आपको मैं बता दूं, इसका आंसर है, जिन बच्चों ने डी ऑप्शन को कलेक्ट किया है उनका आंसर सही है, बाकी जिन्होंने सी को चूज़ किया था वो गलत है। हमारे जो है 22% कुल विद्युत उत्पादन जो है जल से हमें प्राप्त होती है। तो डी ऑप्शन इसका सही है,
तो आप इसको डी पे जो है क्लिक कर सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। हमारे समक्ष अगला क्वेश्चन आ गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी दिलचस्प है। क्वेश्चन है बांस ड्रिप। बांस से ड्रिपिंग होती है, यानी पानी के बूंदे छिड़काई जाती है, सिंचाई की जाती है। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में ये प्रचलित है? देखिए आपको पता होगा कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये थोड़ा सा ना पानी की कमी के लिए ऐसा किया जाता है। लेकिन ये नहीं कि आप राजस्थान को ही क्लिक कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आपको शायद इस वजह से ये लग रहा होगा कि बांस के ड्रिपिंग यानी पानी की कमी के कारण जो है राजस्थान में पानी की कमी होती है तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। तो बांस ड्रिप सिंचाई निम्नलिखित तो किस राज्य में प्रचलित है? तो मैं राजस्थान को तो पहले ही मना कर चुका हूँ कि राजस्थान को मत सोचिए, नहीं तो आपका आंसर बिल्कुल ही गलत चला जाएगा। आपके पास अब 3 ऑप्शन है। 3 ऑप्शन में आप सोच लीजिए, आप 3 ऑप्शन जो यहाँ पर 53 सेंटर ने बना दिया है, आप 3 में से देखिए कौन सा आंसर सही हो सकता है। आप अपने नोटबुक पे इसको नोट कीजिए, जो सही रहेगा बाद में आप सोचिएगा कितना हुआ। और अगर अच्छे बच्चे हो तो आप अपने आंसर जितने आपने टिक किया होगा उसको आप कमेंट भी बता सकते हो कि 25 में से मेरे कितने सही गए हैं, कितने गलत गए। क्योंकि ये तो दिलचस्पी की बात है दोस्तों, अपना इंटरेस्ट दिखाने की बात है कि आपको मैं समझा रहा हूँ, आप भी अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हो तो खुशी मिलती है। चलिए कोई बच्चा ने तो अपना इंटरेस्ट दिखाया ना, मुझे मैसेज किया, मुझे बताया कि मैंने इतने सही आंसर गए, तो चलो खुशी होती है। तो ये तो आपकी अपनी मर्ज़ी है भाई। चलिए अब बांस ड्रिप सिंचाई निम्नलिखित किस राज्य में? बांस ड्रिपिंग का मतलब होता है कि पानी के बूंदे बूंदे जो होता है पौधों पर गिराई जाती है, और ये कई क्षेत्रों में देखने को मिला है। इसलिए मैं राजस्थान को जो है पहले ही एलिमिनेट कहा कर दीजिए। ठीक है, अब सोचिएगा कि ये कर्नाटक में है या मध्य प्रदेश में या मेघालय में है। अब सोचिएगा मेघालय तो वर्षा का राज्य माना जाता है, वर्षा का देश माना जाता है, तो मेघालय में तो होना ही संभव ही नहीं है। अपनी सोच है भाई, सब सोच सकते हैं। अगर आप डी सोच रहे हो कि मध्य प्रदेश में ऐसा होती है बांस ड्रिपिंग सिंचाई, तो ये गलत होगा आपका, बिल्कुल ही गलत होगा। क्या आप सोच रहे हो कर्नाटक की बात कि अगर मध्य प्रदेश अगर एलिमिनेट हो गया तो कर्नाटक होगा? तो आप जो सोच रहे हो वो बिल्कुल ही गलत है, यानी सी तो है ही नहीं इसका आंसर। इसका मतलब मेघालय। अब बहुत आश्चर्यचकित की बात है कि मेघालय वर्षा का राज्य माना जाता है। चेरापूंजी मेघालय में ही आता है जहाँ काफ़ी वर्षा होती है। अब यहाँ पर जो बांस ड्रिप सिंचाई करने की क्या ज़रूरत है? लेकिन देखा जाए तो मेघालय में ही की जाती है। बांस ड्रिप सिंचाई जो है मेघालय में की जाती है। तो ये काफ़ी दिलचस्प क्वेश्चन यहाँ पर बना देता है। मैंने कहा था ना क्वेश्चन बहुत दिलचस्प है। जो सोचिएगा वो होता नहीं है, जो होगा वो सोचिएगा नहीं। अब कहाँ से आप सोच सकिएगा कि मेघालय तो पहले ही वर्षा का राज्य है, यहाँ पर पानी कमी कहाँ से होगा? लेकिन दोस्तों यहाँ पर कृषि करने के लिए जो है अपनी अपनी तकनीक होती है, चाहे अधिक वर्षा हो या कम वर्षा हो। यहाँ बांस ड्रिपिंग सिंचाई जो है उपयोग की जाती है मेघालय में। तो जिन बच्चों ने बी लगाया ऑप्शन उनका सही है। अब चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ गया है आपके समक्ष, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस रचना को टाँका के नाम से जाना जाता है? आखिर टाँका कहते किसको है? ये कोई रचना है, कोई स्ट्रक्चर है जिसको हम टाँका कहते हैं। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझना दोस्तों बहुत ज़रूरी होता है। आप आंसर तो दे तो उल्टा पुल्टा लगा देते हो, लेकिन क्वेश्चन अगर समझ लोगे ना तो आपका जो है आंसर देना बहुत ही आसान हो जाता है। और यह क्वेश्चन क्लियर है कि इन चारों ऑप्शन में से जो है किस रचना को टाँका के नाम से जाना जाता है। यानी इनमें ऑप्शन में छुपा हुआ है कि टाँका किसे कहते हैं। क्या ए पीने के उद्देश्य छतों से संग्रहित वर्षा जल के भंडार के लिए भूमिगत टैंक को हम कहते हैं, या बी वर्षा जल भंडारण के लिए छतों पर टैंकों का निर्माण के लिए हम करते हैं। अब देखिए वर्षा जल भंडारण के लिए छतों पर टैंकों का निर्माण। अब देखिए कोई बच्चा अगर ढंग से इसको पढ़ेगा ना तो इसको ऑटोमेटिक एक दिमाग में बात स्ट्रक करेगा कि अगर छतों पर हमें पता है कि छत पे ही टैंक होता है, लेकिन पूरे छत का पानी टैंक में, इतने ऊंचे टैंक में हम डाल कैसे सकते हैं? देखिए समझ वाली बात है ना। तो चलिए समझ गए हो तो बी को एलिमिनेट पहले ही कर दो। अब सी देखिए वर्षा जल के संग्रहित करने के लिए कृषि क्षेत्रों में टैंकों का निर्माण। चलिए ये हो सकता है कि कृषि क्षेत्र जहाँ होंगे वहाँ हम टैंकों का निर्माण करें और सारे पानी को इकट्ठा करें।
डी, बाढ़ के पानी को संग्रहित करने के लिए टैंकों का निर्माण। अरे भाई ये कैसे हो सकता है? बाढ़ में इतने पानी होते हैं, उनको संग्रह करने की क्या ज़रूरत है? बाढ़ के पानी को संग्रहित करने के लिए टैंक का निर्माण करते हो। पानी, अब तो पता ही होगा बाढ़ कितनी भयंकर होती है। शहर के शहर, गांव के गांव, कस्बा कस्बा नष्ट कर देती है। तो उसको हमें संग्रह करने की क्या ज़रूरत है? अब देखिए ऑप्शन से ही पता लग जाता है कि भाई ये गलत बिल्कुल ही है। तो देखिए 2 ऑप्शन तो ऑलरेडी 53 सेंटर ने रिजेक्ट कर दिया, बी और डी। अब द्वंद्व रह गया ए और सी में। ए और सी में जो सबसे बेस्ट होगा वो आंसर होगा। चलिए अपने नोटबुक पर नोट कीजिए, आपको इतना आसान कर दिया गया है। नोट कीजिए कौन सा आंसर सही होगा। तो आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अब हम द्वंद्व करते हैं ए और सी में कि आखिर क्यों। आपको ऑलरेडी मैंने ए कहते हैं किसको हमने एलिमिनेट किया था, बी, और डी को किया था ना, क्योंकि हम छतों पर टैंक तो निर्माण करके हम भंडारण कर नहीं सकते, बाढ़ के पानी संग्रहित करने की जरूरत नहीं है। तो बी और डी तो एलिमिनेट हो गया। अब बात यहाँ समझने के लिए रह गया ए और सी। देखिए वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए कृषि क्षेत्रों में टैंकों का निर्माण, अगर आपने इसका सही आंसर बोला है, सी लगाया है, तो आपने बिल्कुल ही गलत लगाया है। क्यों? क्योंकि देखिए वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए कृषि क्षेत्रों में टैंकों का निर्माण, हम कृषि क्षेत्र में चलो टैंकों का निर्माण कर देते हैं, ठीक है, कर दिया। जहाँ खेती होता है टैंक बना दिया, अंडरग्राउंड बना दिया। तो पानी के साथ तो मिट्टी मिट्टी भर जाएंगे, लेकिन उतना पानी से होगा क्या? होगा, कृषि आपका हो जाएगा पूरा पूरा। छोटे मोटे कृषि के लिए तो हो सकता है, लेकिन कृषि का मतलब होता है काफ़ी एरिया। तो आपका सी आंसर हो कैसे सकता है? तो आप आंसर पता लग ही गया होगा कि इसका आंसर ए है, पीने के उद्देश्य से छतों से संग्रहित वर्षा जल के भंडारण के लिए भूमिगत टैंक। तो भूमिगत एकदम करेक्ट आंसर है। तो इसका आंसर है ए। आप अपने नोटबुक में लिख सकते हो। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ गया है आपके समक्ष, और क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहुउद्देश्य नदी परियोजना के लिए पक्ष में तर्क नहीं है? क्वेश्चनों को समझना जरूरी है। यहाँ पर बोला है कि बहुउद्देश्य नदी परियोजनाओं को पक्ष में तर्क सही नहीं है। यहाँ है नहीं बोला है, तर्क नहीं है, यानी गलत की तरफ इशारा कर रहा है हमारे लिए। चलिए ऑप्शन पर भी एक नज़र डाल लें। ऑप्शन है, बहुउद्देशीय परियोजना उन क्षेत्रों में पानी लाती है जो पानी कमी से पीड़ित है। चलिए बात तो सही है कि बहुउद्देशीय परियोजना उन क्षेत्रों में पानी लाती है जहाँ पर कमी है, ये तो अच्छी बात है, ये ऑप्शन बहुत अच्छा है। बहुउद्देशीय परियोजना जल प्रवाह की विनियम करके बाढ़ को नियंत्रण करने में मदद करती है। देखिए परियोजना बनाई जाती है, कई परियोजनाएं बनाई जाती है जो बाढ़ के पानी को नियंत्रण करने में भी मदद करती है, तो ये बात भी सही है, यानी इसका बी भी बहुत अच्छा है ऑप्शन बनाया है एग्जामिनर ने। अब सी देखिए, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बड़े पैमानों पर विस्थापन होता है और आजीविका का नुकसान भी होता है। देखिए ये बात भी सही है कि बहुउद्देशीय परियोजना के से बड़े पैमाने विस्थापन होती है लोगों की। चलिए अगर परियोजना बनाते हो, मान लीजिए नदियों का निर्माण करते हो किसी क्षेत्र में, तो उसके समक्ष आने वाले सारे आवास, This topic was till this. We will do the next topic in the next part. If you like it, then please like, share, subscribe, and share the video as much as possible. Do not think, subscribe and save in your mobile. बिजली उत्पादन करने के लिए यूज की जा रही है, तो इसको हम कैसे मान लें? बिजली हमें पता है बहु उद्देश्य नदी परियोजना जो होती है, कई कई नदी की बात किया गया है, तो कहीं कहीं बिजली उत्पादन की जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमारे घरों में उद्योग और हमारे लिए बिजली पैदा करती है। चलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन सब बच्चों के लिए टफ रहेगा, क्योंकि यहाँ पर किसी भी ऑप्शन को हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि क्लियर है सब चीज़ों के लिए बहुउद्देश्य नदी परियोजना लगाई जाती है। फिर भी आप अपना दिमाग से सोचिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। आपने सोच के अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए, बाद में मुझे बताना है कमेंट करके कि आपका कितना आंसर सही गया और कितना गलत गया। कुछ मेहनत का मुझे भी तो आप फल दीजिएगा, कि कमेंट कीजिएगा तो पता तो लगे कि आपका जो है 25 में से कितने क्वेश्चन जो है सही गए। ठीक है, तो देखा जाए तो यहाँ पर चलिए 7 ही क्वेश्चन रहेंगे, तो इस 7 क्वेश्चन में से आप जरूर कमेंट कीजिएगा 7 क्वेश्चन में कितना सही गया है।
ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आपने लगाई दिस टॉपिक वाज टिल दिस we will be do their next topic in the next part. If you like it, then please like, share, subscribe and share the video as much as possible. Do not think, subscribe and save in your mobile. Thank you. जो नहीं है, क्या बहु परियोजना, देखिए अब अगर ये बात अगर आपने समझ लिया होता ना, तो आंसर आपका करेक्ट दिमाग में आ गया होता। ये बहु नदी परियोजना जो है लोगों की भलाई के लिए बनाई जाती है, इसलिए आंसर नहीं है, उसके उल्टा है, इसका उल्टा है। परियोजनाओं के पक्ष में तर्क नहीं है, जो सही नहीं है उसको चुनना है आपने। तो हमने तो सारे ऑप्शनों की बात किया, जैसे बहुउद्देशीय परियोजना उन क्षेत्रों में पानी लाती है जो पानी कमी से पीड़ित होती है, ये बात तो सही है, ये करेक्ट है, लेकिन हमें नहीं ढूंढना है। बहुउद्देशीय परियोजना जल प्रवाह की विनियमन करके बाढ़ को नियंत्रित करने में मदद करती है। अब देखिए नियंत्रित करती है, ये तो बात सही है, लेकिन हमें नहीं ढूंढना है। अब बहुउद्देशीय परियोजना से बड़े पैमाने पर विस्थापन होती है और आजीविका का नुकसान होती है। अब देखिए ये ऑप्शन थोड़ा सा अलग है, लेकिन हम डी देख लेते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना हमारे उद्योग और हमारे घरों के लिए बिजली पैदा करती है, ये भी बात सही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर गलती जो दिख रही है वो सी है, क्योंकि बहुउद्देशीय परियोजना की बात की जा रही है। बहुउद्देशीय परियोजना से बड़े पैमानों पर विस्थापन होती, चलिए बड़े पैमाने पर विस्थापन तो नहीं होगी, कुछ हद तक होगी, ये बात सच्चाई है। और आजीविका का नुकसान होगी, लेकिन इतना अधिक नहीं होगी कि लोगों को सब मुसीबत ही आ जाए, क्योंकि परियोजनाएं बनाई जाती है अच्छे के लिए, लोगों की भलाई के लिए। तो इसका आंसर सी है। देखिए दोस्तों, आपको चूज़ करना है, छांटना है कि भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन क्वेश्चनों को समझना भी जरूरी है। यहाँ क्वेश्चन था कि बहुउद्देशीय नदी परियोजना के पक्ष में तर्क नहीं है, जो सही नहीं है उसको चुनना था हमने, ठीक है, सही वाले को नहीं चुनना था, गलत वाले को चुनना था। तो यहाँ तो सारी बातें सही थी, सिर्फ सी में जो थी कुछ गलतियाँ थी। बड़े पैमाने पर विस्थापन नहीं होना और आजीविका का इतना अधिक नहीं नुकसान होता जितना नुकसान की बात कर रहा है ये। तो यहाँ क्वेश्चन ये काफ़ी महत्वपूर्ण था, काफ़ी दिलचस्प था। आगे जो हमारे समक्ष आया है अगला क्वेश्चन, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, और क्वेश्चन है कि कौन सा ताजे पानी का स्रोत नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्लियर है, समझ में आ गया होगा कि इसमें से कौन सा जो है ताजे पानी का स्रोत नहीं है। देखिए हमने भूजल के बारे में पीछे किया है कि वो पानी जो है ताजे पानी का स्रोत है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो भूजल जो, चलिए ये तो हमें पता है कि ये ताजे पानी का स्रोत है, लेकिन हमसे पूछ लिया है कि ताजे पानी का स्रोत नहीं है। तो ये देखिए ग्लेशियर और बर्फ की चादरें, बी भूजल, सी सतही अफवाह, डी महासागर। तो सोच के थोड़ा सा आंसर दीजिए, अपने कॉपी पर नोट कीजिए, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। बाद में मुझे बताना भी है कि कौन सा क्वेश्चन आपको कितना सही गया है। तो आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अब देखते हैं कौन सा ताजे पानी का स्रोत नहीं है। नहीं की बात कर रहे हैं। देखिए ग्लेशियर और बर्फ की चादरें, क्या ये ताजे पानी का स्रोत हो सकते हैं कि नहीं होंगे? ग्लेशियर से पानी को पिघलना, बर्फ़ की चादरों का पिघलना, क्या ये शुद्ध पानी होगा कि अशुद्ध होगा? सोचिए दोस्तों, ये शुद्ध पानी का होता है। ये ग्लेशियर की पानी जो होती है बर्फ़ के रूप में होती है, और ये शुद्ध पानी होती है, ताज़े पानी का स्रोत होता है। कहते हैं ना ग्लेशियर की पानी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, पीने लायक होती है। और भूजल को तो हम पहले ही कह चुके हैं कि भाई ताज़े पानी का होता है। तो दोनों ऑप्शन तो सही है। अब यहाँ द्वंद्व रह गया सी और डी में। सतही प्रवाह, सतही प्रवाह जो है ये भी ताज़े पानी का स्रोत है, लेकिन इतना अधिक यूज़ नहीं होता है। ये भी सतह प्रवाह जो होती है ताज़े पानी का स्रोत है, लेकिन इतना यूज़ नहीं होती है। लेकिन महासागर, आपको पता है कि महासागर में पानी की कमी नहीं है। महासागर में तो इतना पानी है कि हमारा कहते हैं कुछ भी, कहते हैं पानी की कमी नहीं महसूस होगा। लेकिन आपको मैं बता दूं, महासागर में से अगर एक बाल्टी पानी अगर उठाइएगा तो सिर्फ पीने लायक पानी एक बूंद ही मिलेगा आपको। एक बूंद का मतलब समझ सकते हो, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जब हमारे पास महासागर में इतना पानी है, फिर भी हम ये क्यों कहते हैं कि पानी ख़त्म हो रहा है, पानी को सेव करो, वाटर इज़ अ लाइफ क्यों कहते हैं?
क्योंकि पानी जो है महासागर का खारा होता है, वो पीने लायक नहीं होती है। देखा जाए तो अमेरिका ने भी इस पर रिसर्च किया था, पानी शुद्ध करने की कोशिश किया था, लेकिन जितना पानी वो शुद्ध नहीं कर सका उससे 100 गुना जो है उसको कॉस्टली पड़ गया, कॉस्ट पड़ गया, इसलिए उसने भी छोड़ दिया महासागर से पानी प्योर करने का। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ताज़े पानी का स्रोत नहीं है, वो है महासागर। तो आंसर आपका है डी, महासागर जो है ताज़े पानी का झील जो है सर नहीं है स्रोत। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि फ्लैकन मार्क के अनुसार जल तनाव तब होता है जब, देखिए फ्लैक मार्क एक जो है थिंकनर है और एक राइटर है, उन्होंने जल तनाव जल के बारे में बताया था, अपनी थ्योरी दी थी। तो उनकी थ्योरी काफ़ी महत्वपूर्ण थी। अब देखा जाए तो उनकी थ्योरी के अंतर्गत यहाँ कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या सही हो सकता है। ये दिया है पानी की उपलब्धता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 1000 घन मीटर से कम है, चलिए ये दे दिया उन्होंने। बी, पानी कोई कमी नहीं है, चलिए ये तो देंगे ही नहीं, कभी कोई भी नहीं देगा ये ऑप्शन। बाढ़ है, यानी बाढ़ का पानी हमारे पास बहुत है इसलिए हमें कोई टेंशन नहीं है, भाई गलत है। यानी यहाँ पर बी और सी तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए, क्योंकि ये बिल्कुल ही ऑड है। कोई भी राइटर, कोई भी थिंकनर्स ऐसी बात बोल ही नहीं सकता कि हमें पानी की कमी नहीं है। अरे पानी की कमी इतनी है कि हर लोग जो है परेशान है। और बाढ़ के पानी इतने महत्वपूर्ण होते तो हमें तो पानी की जरूरत ही नहीं पड़ती। चलिए बी और सी तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया। डी है पानी की उपलब्धता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 1000 घन मीटर से अधिक है। अब चलिए द्वंद्व हमारे रह गए ए और डी में, तो आप अपना सही आंसर चूज़ कीजिए, फिर देखते हैं कि आंसर सही कौन सा है। आपने चूज़ कर लिया। चलिए देखिए, फ्लैकन मार्क के अनुसार कोई व्यक्ति क्या बोल सकता है। क्या आपने डी लगाया है? अगर आपने डी लगाया है तो आपका आंसर जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि डी नहीं है दोस्तों। अब ये कोई व्यक्ति थोड़ी बोलेगा कि पानी की उपलब्धता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 1000 घन मीटर से भी अधिक है। अरे कितना पानी अगर हम बात करते हैं, अगर अधिक है तो पानी की कमी कैसे रह जाएगी फिर। तो ये फ्लैकन मार्क ने कहा नहीं होगा, ये गलत है, डी गलत है। तो इसका मतलब आंसर है ए। जिन बच्चों ने ए लगाया उनका आंसर सही गया, यानी पानी की उपलब्धता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जो है 1000 घन लीटर से भी कम होना चाहिए, तभी जो है पानी की तनाव को हम कम कर सकते हैं। और ये बात फ्लैकन मार्क ने कही थी अपनी बुक में, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। आगे चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। आगे जो हमारे समक्ष आया है ये काफ़ी दिलचस्प क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, आप सोच में पड़ गए होंगे कि यहाँ पर ऑप्शन जो है इतने सारे ऑप्शन हैं, अब इसमें से ढूंढना कितना मुश्किल होगा। 4 ऑप्शन ढूंढना ही हमारे लिए बहुत ही टेढ़ी खीर होती है। तो यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन में से ढूंढे का क्या जाए। तो बात आपकी सही है, बात आपकी सही है कि इतने सारे ऑप्शन में से ढूंढे क्या। लेकिन देखिए एग्जामिनर होते हैं, वो कुछ भी क्वेश्चन डाल देते हैं, तो बच्चे की इंटेलिजेंसी होती है कि वो आंसर देते कैसे हैं। चलिए फिर भी हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन सा पानी की कमी का कारण नहीं है। देखिए क्वेश्चन समझ सकते हो आप क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पानी कमी के कारण नहीं है। पानी किनके कारण कम नहीं होता है, किनके कारण पानी की कमी के कारण नहीं है, कौन सी है। अब देखिए बढ़ती जनसंख्या पानी की कमी का सबसे बड़ा कारण है, लेकिन नहीं की बात किया गया है वहाँ। अधिक पानी वाले फसल उगाना, भाई इससे तो बहुत पानी कम खत्म हो जाएगी। 2 ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत बोला गया यहाँ। जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या के कारण पानी की समस्या पैदा हुई है। अगर अधिक पानी वाले हम फसल उगाते हैं तो हमारे धरती में ग्राउंड वाटर तो बचेगा ही नहीं। तो ए और बी तो चलिए एलिमिनेट हो गया। सिंचाई सुविधा का विस्तार, अगर सिंचाई सुविधा का अधिक विस्तार करते चले गए तो कुछ हद तक ये पॉइंट रह सकता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ही है कि सिंचाई सुविधा का विस्तार करने से कृषि में बढ़ोतरी होगी। खेतों में व्यक्तिगत कुएं और ट्यूबवेल लगाना, अब देखिए अगर व्यक्तिगत सारे बंदे अगर कुएं और ट्यूबवेल लगा लिए तो ग्राउंड वाटर का क्या दशा होगी। आप तो सोच ही सकते हो कि दशा क्या हो जाएगी। चारों तरफ ही पानी रहेगा, तो पानी ग्राउंड वाटर ऑटोमेटिक जो है उसका लेवल नीचे चला जाएगा। और सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार कर ले तो इसका भी यही कारण बनेगा। तो यहाँ देखा जाए तो ए बी सी डी सारे एलिमिनेट हो चुके हैं, क्योंकि सब गलत बात बता रहे हैं।
बढ़ती जनसंख्या सबसे बड़ा कारण बनती है। पानी वाले फसल अधिक उगाओगे तो पानी की कमी तो होगी होगी। सिंचाई सुविधा का विस्तार करोगे फिर भी पानी की कमी होगी होगी। खेतों में व्यक्तिगत कुएं और ट्यूबवेल हर व्यक्ति लगा दे व्यक्तिगत, तो पानी की समस्या तो और खड़ी हो जाएगी। ग्राउंड वाटर डायरेक्ट नीचे चला जाएगा। अब द्वंद्व हमारे समक्ष रह गया EFG में, यानी जल संचरण तकनीक के द्वारा। देखिए निम्नलिखित तो कौन सा पानी कमी का कारण नहीं है? जल संचरण तकनीक ये हो सकता है। उद्योग, छत पर कटाई प्रणाली। अब देखिए आप तीन ऑप्शन में से देखिए कौन सा आपका सही है, फिर मैं बताऊंगा इसका आंसर क्या है। चलिए आपने सोच लिया होगा कौन सा आंसर है। अब देखिए दोस्तों, हमने ABCD को तो ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिया क्योंकि इससे पानी की कमी बहुत खलल हो रही है। अब दूसरा है जल संचरण तकनीक, ये हो सकता है। और उद्योग नहीं, ये बात तो नहीं। उद्योग तो सबसे अधिक पानी का खपत करता है। पता है ना कि उद्योग के लिए पानी स्पेशली होती है, क्योंकि उद्योग जहाँ पर लगाई जाती है वहाँ पानी की सुविधा न हो तो उद्योग लगाना संभव नहीं है। तो सबसे अधिक उद्योग खा सकता है। तो ABCDF ये पांचों जो है एलिमिनेट हो गया। हमारे समक्ष अब रह गया E और G। जल संचरण तकनीक के द्वारा या छत पर कटाई प्रणाली। देखिए जल संचरण तकनीक तो बहुत अच्छी बात है, इससे पानी कमी नहीं होगी। सही बात है, क्योंकि नहीं होगी। अगर हम जल संचरण करते हैं तो महत्वपूर्ण है। और छत पर कटाई प्रणाली भी करते हैं, छत पर पानी इकट्ठा करते हैं, तो इससे भी कमी नहीं होगी। अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि हम E और G में माने किसको? दोस्तों आप दोनों को भी मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही है। जल संचरण तकनीक भी सही है और छत पर कटाई प्रणाली भी सही है। तो आप दोनों में से आंसर भी लगा सकते हो। दोनों आंसर को आंसर देना, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही सही बात बता रही है। तो देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन तिरपान से सेंटर लाता है जो एग्जामिनर का दिमाग सोचता है। तभी मैं कहता हूँ ना कि यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। सब्सक्राइब करके रख लीजिए, सेव कीजिए चैनल को, और दूसरे बच्चों को शेयर भी कीजिए, उनको भी ऐसे क्वेश्चन से जो है एक बार दीदार हो जाए, समझ सके वो। एग्जामिनर अगर पूछ लिया तो क्या करेंगे फिर? कभी कभी एक क्वेश्चन के दो दो आंसर भी हो सकते हैं, कोई गलत नहीं होता है। जैसे इसमें आया, इसमें जो है E जल संचरण तकनीक और G छत पर कटाई प्रणाली, दोनों ही आंसर एकदम सही है। आगे जो हमारे समक्ष यहाँ क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है भाखड़ा नंगल नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनी है? देखिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कोई खास नहीं है। और इसके बारे में हर एक बच्चे को पता होगा कि भाखड़ा नंगल नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। क्या ये सतलुज ब्यास पे बनाई गई है, या बी रवि चिनाब पे बनाई गई है, या गंगा पे बनाई गई, या बेटा पे बनाई गई है? ये चारों ऑप्शन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप इसमें से कोई भी जो है आंसर चूज़ कीजिए जो सही हो, और अपने कॉपी पे जो है नोट डाउन कीजिए। देखिए भाखड़ा नंगल नदी घाटी परियोजना की बात करें तो किस नदी पर? देखिए बेटा और गंगा तो ये तो गलत है बिल्कुल ही। बेटा कोई नदी है क्या? ये तो एलिमिनेट हो जाता है डायरेक्टली। और गंगा पर तो ऐसी नदियाँ हमने सुना ही नहीं कभी कि भाखड़ा नंगल। भाखड़ा तो गंगा पर बनाई ही नहीं गई। ठीक है, भाखड़ा गंगा और भाखड़ा में तो कहते हैं ना 36 की आंकड़ा है कि वो भाखड़ा नंगल कहाँ है और गंगा नदी कहाँ से बहती है। तो C और D तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया। अब बात रह गया, द्वंद्व रह गया A और B में। क्या सतलुज ब्यास में है या रवि चिनाब में है? तो आपने जो आंसर लगाया है, क्या आपने B लगाया है? आपने जो B लगाया है वो एकदम गलत है, क्योंकि B नहीं है। रवि चिनाब पर भाखड़ा नंगल नदी नहीं है। भाखड़ा नंगल नदी जो है सतलुज और ब्यास नदी पे बनाई गई है। तो भाखड़ा नदी घाटी परियोजना किस नदी पे बनाई गई है? A सतलुज और ब्यास। जिन बच्चों ने A सतलुज और ब्यास चूज़ किया है उनका आंसर सही है, वो आगे बढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या है। देखिए हमारे समक्ष अगला क्वेश्चन भी आ गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और क्वेश्चन है हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? क्वेश्चन तो क्लियर कट है। A गंगा पर, B मजरा पर, C मानस पर, D महानदी पर। ऑप्शन भी क्लियर है, तो आप अपना आंसर देखिए क्या हो सकता है सही। इसे आपका पता है दोस्तों, नॉलेज का चेक हो जाता है कि आपको कितना नॉलेज है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। चलिए आपने चूज़ कर लिया होगा, आपने किसको लगाया है? क्या गंगा को लगाया है या मजरा मानस महानदी किसको लगाया है? तो हीराकुंड बांध जो है किस नदी में बनाई गई है?
हीराकुंड बांध जो है गंगा नदी पर नहीं बनाई गई है, ये तो चलिए ख़त्म हो जाता है। मजरा पर भी नहीं बनाई गई है। अब बात रह गया मानस और महानदी। तो जिन बच्चों ने महानदी को चूज़ किया है उनका आंसर बिल्कुल ही सही है, क्योंकि ये हीराकुंड बांध जो है महानदी पे बनाई गई है। तो आप डी ऑप्शन के साथ जा सकते हो, सी गलत है। यानी उसका ऑप्शन जो है डी महानदी पर हीराकुंड बांध बनाई गई है। तो ये हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और क्वेश्चन है कि भाखड़ा नंगल परियोजना के पानी का उपयोग मुख्य रूप से किया जा रहा है, किस उपयोग के लिए किया जा रहा है? भाखड़ा नंगल परियोजना के जो पानी का उपयोग किस कार्य के लिए किया जा रहा है? ए जल विद्युत और सिंचाई के लिए, बी मछली प्रजनन और नेविगेशन के लिए, या सी औद्योगिक उपयोग के लिए, या डी बांध नियंत्रण के लिए। अब देखिए ऑप्शन काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब ये देखिए हर जगह उपयोग किया जा सकता है, भाखड़ा नंगल परियोजना का हर जगह उपयोग किया जाता है, लेकिन इसमें से सही कौन सा होगा वो आपको चूज़ करना है। आप चूज़ कीजिए कौन सा सही है। इस मल्टी चॉइस क्वेश्चन में कौन सा सही है आप चुनिए जल्दी फटाफट। आपने चुन लिया होगा। देखिए भाखड़ा नंगल परियोजना किसके लिए की जाती है? बाढ़ नियंत्रण के लिए तो की जाती है, लेकिन बाढ़ नियंत्रण के साथ साथ जो मेन पर्पस है उसका पता करना पड़ेगा। उद्योग में भी इसका उपयोग कुछ हद तक की जाती है, ये नहीं मैं कहूँगा कि बिल्कुल नहीं किया जाता है, इसका भी उद्योग में की जाती है। और देखिए पानी है तो मछली प्रजनन तो होगी ही होगी, और नेविगेशन तो रहेगा ही रहेगा भाई। नदी है तो नेविगेशन तो रहती ही रहती है। लेकिन देखा जाए तो भाखड़ा नंगल परियोजना के पानी का उपयोग जो है मुख्य तौर पर जो मेन पर्पस है वो जल विद्युत और सिंचाई के लिए उपयोग की जाती है, क्योंकि पानी सूख जाती है तो इसके द्वारा भाखड़ा नंगल पानी को छोड़ी जाती है धीरे धीरे, जिसे सिंचाई के लिए उपयोग की जाती है, और जल विद्युत तो है ही है, क्योंकि आपको पता है कि भाखड़ा बांध से जो है बहुत मेगावाट जो है बिजली की उत्पादन की जाती है टरबाइन लगा के, और कई क्षेत्रों को जो है बिजली देती है। तो भाखड़ा नंगल परियोजना का मुख्य उपयोग जो है जल विद्युत और सिंचाई के लिए, ये सही ऑप्शन आपका होगा। तो यहाँ पर सारे ऑप्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग थे, इंपॉर्टेंट थे, और सारे के सारे सही थे, लेकिन उसमें से हमें एक को चूज़ करना था जो मुख्य थे। तो मुख्य तो ए ही होगा। तो इसका मतलब है इसका आंसर ए जल विद्युत और सिंचाई आंसर है। जिन बच्चों ने ए लगाया उनका सही है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पर देखा जाए तो अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, और क्वेश्चन है पश्चिमी हिमालय में देखे जाने वाले डायवर्जन चैनल कहलाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह आपको याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एलिमिनेशन मेथड नहीं लगाई जा सकती। कि पश्चिमी हिमालय में देखे जाने वाले डायवर्जन चैनल क्या कहलाते हैं? कैसे गुल्स या कुल्स कहते हैं, खादीन कहते हैं, जोहार कहते हैं, या पुण्यवरण गड्ढे कहते हैं? तो आपको मैंने पहले ही कह दिया कि इसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि पश्चिम हिमालय में देखे जाने वाले डायवर्जन चैनल को क्या कहते हैं। ठीक है, चलिए मुझे तो पता है कि इसको क्या कहते हैं, आप थोड़ा सा अपनी इंटेलिजेंसी लगाइए और देखिए क्या हो सकता है इसका आंसर, और अपने नोटबुक पे इसको नोट भी आपने करना है। तो आपने सोच लिया होगा, नोट भी कर लिया होगा। देखिए पश्चिमी हिमालय में देखे जाने वाले डायवर्जन चैनल को हम गुल्स या कुल कहते हैं। मैं डायरेक्ट इसलिए आंसर इसका बता रहा हूँ क्योंकि इसका यहाँ तुक्का नहीं लगाई जा सकती, एलिमिनेट नहीं की जा सकती, यहाँ पर नॉलेज होना चाहिए। गुल्स या कुल कहीं आप पढ़े होगे तभी आपको नॉलेज रहेगा कि पश्चिम हिमालय में देखे जाने वाले डायवर्जन चैनल को हम गुल या कुल कहते हैं। अब इसके अंतर्गत कई क्वेश्चन होंगे तो आपको समझना पड़ेगा सही से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष क्या आता है। यहाँ पर देखिए हमारे समक्ष क्वेश्चन आ गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, और क्वेश्चन है कृषि क्षेत्र जिनका उपयोग वर्षा आधारित भंडारण संरचनाओं के रूप में किया जाता है क्या कहलाता है? अब क्वेश्चन समझ में आपको आया होगा। कृषि क्षेत्र जिनका उपयोग वर्षा आधारित भंडारण संरचनाओं के लिए किया जाता है, जो हम पानी का भंडारण करते हैं कृषि के लिए, आखिर उसको कहते क्या है? क्या उसे कुल्स कहते हैं, या खादीन जोहर कहते हैं, या सी पुण्यभरण गड्ढे कहते हैं, या इनमें से तीनों ऑप्शन में से कोई भी सही नहीं है?
ये आपको चूज करना है, आप दिमाग लगाइए क्या कैसे। This topic was till this. We will do the next topic in the next part. If you like it, then please like, share, subscribe, and share the video as much as possible. Do not think, subscribe and save in your mobile. Thank you. डी तो एलिमिनेट नहीं हो सकता क्योंकि अभी डी का इसमें गलत अलग वर्डिंग दिया हुआ है। पुण्य भरण गड्ढे, ये बात नहीं हो सकती है। क्या बी होगा या डी होगा? उपयोग में से कोई भी नहीं है आंसर सही। तो आपने क्या लगाया था? अगर आपने बी लगाया है तो आपका आंसर जो है कई हद तक सही है, क्योंकि खड़ीन जोहर ही है जो वर्षा संग्रह भंडार संरचना के रूप में किए जाते हैं और इसको हम खड़ीन और जोहार कहते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही है। आप बी के साथ जा सकते हो। जिन बच्चों ने बी लगाया है उनका आंसर सही है, वो आगे अच्छा कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर देख सकते हो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लग रहा है कि पीने के लिए वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए राजस्थान में देखे जाने वाले भूमिगत टैंकों को क्या कहा जाता है? अब देखिए ये काफ़ी दिलचस्प क्वेश्चन है। This topic was till this. We will do the next topic in the next part. If you like it, then please like, share, subscribe and share the video as much as possible. Do not think, subscribe and save in your mobile. Thank you. अब देखिए यहाँ पर अगर दिमाग लगाइएगा, पिछले क्वेश्चनों के एनालाइज कीजिएगा, तो डी जो कुल्स है, कुल्स एक चैनल को कहा गया था, ठीक है, तो ये तो ख़त्म हो जाती है। सी तालाब भी देखा जाए तो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि तालाब को अगर देखें, तालाब तो हर क्षेत्र में, तो अगर तालाब देखने के लिए उसको टैंक के नाम थोड़ी दिया जा सकता है। ये तो सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। अब द्वंद्व आपके समक्ष रह गया ए और बी में। अब अपना आंसर सही चूज़ कीजिए कि ए है कि बी है। मैंने इतना हेल्प आपको कर दिया है। अब अपना आंसर लगा चुके होंगे, मुझे पता है, विश्वास है आपने लगा लिया होगा। अब देखिए पीने के लिए वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए स्थान में देखे जाने वाले भूमिगत टैंक को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपने क्या आंसर लगा दिया? बी लगाया है, खड़ीन। तो आपका आंसर जो है बिल्कुल ही गलत है। खड़ीन तो हमने पढ़ा है कुछ देर पहले ही, वो तो कुछ और चीज़ को कहा जाता है। आपने स्टार्टिंग में क्वेश्चन देखा होगा, टाँका कहा जाता है। जो पानी के टैंक बनाए जाते हैं उनको टाँका कहा जाता है, और ये राजस्थान क्षेत्र में पाए जाते हैं। वहाँ पर कई क्षेत्रों में जो है टाँका बनाए जाते हैं जो पानी के संग्रह के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, और यहाँ पानी कमी होती है तो उसको हम टाँका कहते हैं। तो आपने समझ लिया हुआ क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण था, काफ़ी ज़रूरी था। यहाँ पर जो आगे क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और क्वेश्चन है कि पश्चिम राजस्थान में आज प्रचुर मात्रा में पानी उपलब्ध है क्योंकि। अब देखिए राजस्थान के नाम सुनते ही आपको ये लगता है कि ये जो है पानी से अभावित है, यानी पानी है नहीं यहाँ पर। लेकिन यहाँ क्वेश्चन है कि पश्चिम राजस्थान में आज प्रचुर मात्रा में, प्रचुर का मतलब होता है अधिक मात्रा में पानी उपलब्ध है। क्यों है? क्या वहाँ के लोग समझदार हो गए हैं? क्या है? क्या छत पर जल संचलन करते हैं वो लोग? या बी 12 मासी राजस्थान नहर बहा दी गई है? या टाँकाओं का निर्माण किया गया है? या उपयुक्त में से कोई नहीं है? क्वेश्चन क्लियर कट है, क्वेश्चन में कुछ भी गलत नहीं है। कि देखिए पश्चिम राजस्थान में आज प्रचुर मात्रा में पानी होने का क्या कारण हो सकता है? तो आप अपना दिमाग लगाइए। देखिए टाँका का निर्माण तो हुआ है कि राजस्थान में हुआ, लेकिन राजस्थान के किस क्षेत्र में हुआ है ये बात आपको नहीं पता है, ठीक है। छत पर जल संचलन भी किया जाता है, लेकिन बरसात होगी तब ना जल संचलन की जाएगी। तो आप अपना दिमाग लगाइए क्या हो सकता है इसका आंसर। आपने अपने नोट पे बुक पे नोट कर लिया होगा। देखिए पश्चिम राजस्थान में आज प्रचुर मात्रा में पानी उपलब्ध होने का सबसे बड़ा कारण जो बनता है, छत पर जल संचलन तो है नहीं, क्योंकि छत पे हम इतना अधिक मात्रा में पानी संचलन नहीं कर सकते हैं। और टाँकाओं का मतलब यही होता है कि खेतों के आसपास जो है कुएं बना के जो है पानी इकट्ठा करना। आप कितना इकट्ठा कर लीजिएगा, और उपयोग में से कोई नहीं है तो हो नहीं सकता, ऐसा है नहीं। तो बी ऑप्शन रह गया शेष। तो 12 मासी राजस्थान नहर, देखिए वहाँ पर एक नहर बनाई गई है और इसको उन क्षेत्रों से जोड़ी गई है जो इसमें पानी की मात्रा अधिक है। अब नदी है, सारे साल बहती रहेगी
तभी प्रचुर मात्रा में पानी उपलब्ध होगी ना। यह क्वेश्चन ही साफ बता रहा था कि प्रचुर मात्रा में यानी अधिक अमाउंट में जल छत पर जल संचरण करने से हम अधिक मात्रा में पानी इकट्ठा तो कर नहीं सकते। टाँका का निर्माण करें, टाँका एक तरह का जो होता है टैंक होता है, इतना टैंक आप निर्माण नहीं कर सकते जो प्रचुर मात्रा में पानी उपलब्ध करा सके। नहर ही बनाया जा सकता है, वो भी 12 मासी नहर, जो 12 मास यानी 12 मास जो है बहता रहे। तो इसका आंसर साफ क्लियर ही हो गया कि 12 मासी राजस्थान नहर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसी के कारण यहाँ पर जो है राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में प्रचुर मात्रा में पानी उपलब्ध हुआ है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है कि विश्व के जल की कुल मात्रा का कितना प्रतिशत महासागरों के रूप में मौजूद होने का अनुमान है। देखिए, विश्व के जल की कुल मात्रा का कितना प्रतिशत महासागर के रूप में मौजूद होने का अनुमान है। तो यहाँ महासागर की बात किया जा रहा है, तो महासागर में तो सबसे अधिक अमाउंट में पानी होती है, तो 90% तो ऊपर ही है, लेकिन वो कितना प्रतिशत है यही आपको कन्फ्यूज़न होगा कि 90% तो अधिक है, लेकिन यहाँ पर तो सारे ऑप्शन जो दिए हुए हैं 95, 96, 97 दे रखे, एक ही लाइन में दे रखे, तो इसमें आपको जो है सोचना बहुत पड़ जाता है और इसको याद रखना ज़रूरी रहता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में हम ना एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं ना कुछ लगा सकते हैं। सोच लीजिए, फिर भी आप अपना आंसर देखिए क्या हो सकता है। ठीक है, तो आपने अपना कॉपी पर लिख लिया होगा इसका आंसर सही क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, डायरेक्टली ही बताऊंगा, इसमें कोई वो नहीं है, उलझन वाली बात नहीं है। इसका जो है 96.5 है, यानी इसका आंसर सी सही है। विश्व के जल की कुल मात्रा का जो है 86.5% महासागर के रूप में जल मौजूद का अनुमान लगाया गया है। ये तो सच्चाई है कि 96% समुद्र में ही पानी है, बाकी क्षेत्रों में तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी वो पानी पीने लायक नहीं होती, खरा होती है। तो महासागर का पानी यहाँ पर किसी काम का नहीं है। पानी तो है इम्पोर्टेंट, 96.5% है, लेकिन पीने लायक 1% भी नहीं है। तो आप समझ गए हो इसका आंसर सी है, 96.5%। आगे जो हमारे समक्ष क्वेश्चन आया है, जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है, और क्वेश्चन है कि एकमात्र राज्य जिसने सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचरण रखना अनिवार्य कर दिया है, आखिर वो कौन सा राज्य है जो छत पर वर्षा का जल संचरण करने के लिए अनिवार्य बना दिया। अब देखिए, बहुत से आजकल पता ही होगा कि राजनीति में हलचल चलती रहती है, बहुत से नेता लोग जो है ऐसे ऐसे रूल रेगुलेशन बनाते हैं जो सही भी होती है गलत भी होती है, लेकिन यहाँ पर सही रूल रेगुलेशन बनाई गई है। पानी की जल, क्योंकि वर्षा का जल जो होती है काफ़ी हद तक शुद्ध होती है और छतों पर इकट्ठा करके उसको संरक्षित करना काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या वो आंध्र प्रदेश के राज्य में किया गया है, या बी कर्नाटक में, या सी तमिलनाडु में, या डी जो है पश्चिम बंगाल में। तो आप अपना आंसर सोच सकते हो कि क्या हो सकता है इसका आंसर। काफ़ी दिलचस्प क्वेश्चन है, तो सोचना भी आपको पड़ता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश के, तो आंध्र प्रदेश में हमने ऐसा कुछ भी नहीं सुना। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में जल की मात्रा है, ये नहीं कि वहाँ पर बिल्कुल पानी नहीं है, जल की मात्रा बहुत है कर्नाटक में। अब देखिए, अगर आप सोचिएगा पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल में भी नहीं है, लेकिन ये तमिलनाडु में ज़रूर हो सकता है। तो इसका मतलब है कि तमिलनाडु ही सही आंसर होगा। तो आपका आंसर जो हुआ सी हुआ, तमिलनाडु। कि तमिलनाडु एकमात्र राज्य जिसमें सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचरण रखना अनिवार्य कर दी गई है। तमिलनाडु एक ऐसा एकमात्र राज्य है जिसमें घरों में छत पर वर्षा का जल संचरण करने के लिए कंपल्सरी कर दी है, सबको करना पड़ेगा, जो नहीं करेगा सजा पाएगा, ऐसा प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर आंसर समझ गए होंगे, क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आ गया है, देखिए क्वेश्चन साफ है कि वह सुदूर गांव जिसने वर्षा जल के समृद्ध होने का दुर्लभ गौरव अर्जित किया है। देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि वह सुदूर गांव जिसने वर्षा जल के समृद्ध होने का दुर्लभ, क्योंकि वर्षा जल समृद्ध करने का दुर्लभ ही बात है कि बहुत कम ही, रेयर ही होती है, दुर्लभ गौरव अर्जित किया है, वो कौन सा राज्य है। गाड़ी है, काजा है, गंडाथूर है, या इसमें से कोई नहीं है। तो काफ़ी दिलचस्प क्वेश्चन बन गया ना यहाँ पर। आप अपना आंसर सोचिए क्या हो सकता है इसका आंसर।
क्वेश्चन है, वह सुधीर गांव जिसने वर्षा जल समृद्ध होने का दुर्लभ गौरव अर्जित किया है, क्या वो गाड़ी है, काजा है, गंडथूर है? तो यहाँ पर अगर आप सोच रहे होगे गाड़ी है तो आपका ऑप्शन गलत है। अगर आप सोच रहे होगे सी है गोंडाथूर तो आप बिल्कुल ही सही सोच रहे हो, क्योंकि इसका आंसर सी ही है, गोंडाथूर ही है, जिसको जो है वर्षा जल समृद्ध होने में दुर्लभ गौरव प्राप्त हुआ है। यानी इसी का राज्य है जहाँ पर इनको गौरव प्राप्त हुआ है कि इन्होंने वर्षा जल को संग्रहित किया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम व्यू से क्वेश्चन। आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पर हमारे समक्ष क्वेश्चन आ गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। क्वेश्चन सबसे पहले समझना जरूरी है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई का प्रतिकूल प्रभाव नहीं, सिंचाई करने से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ती है। किसके कारण नहीं पड़ती है? यहाँ पढ़ने की बात नहीं की गई है कि सिंचाई करने से प्रतिकूल प्रभाव नहीं है, अनुकूल नहीं बोला, प्रतिकूल प्रभाव नहीं है, यानी अनुकूल की बात की गई है। देखिए, सिंचाई का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है यानी अनुकूल की बात कर रहा है। क्वेश्चन ऐसे ही घुमाते हैं एग्जामिनर, बच्चे समझ नहीं पाते कि भाई क्वेश्चन पूछा क्या गया है। प्रतिकूल प्रभाव यानी जो प्रतिकूल प्रभाव नहीं, गलत प्रभाव नहीं है। तो क्या हो सकता है? इस सिंचाई के फसल पैटर्न बदला जाता है, बी जल गहन फसलें शुष्क क्षेत्रों में उगाई जाती है, सी मिट्टी का लवणीकरण की जाती है, या फसल की उपज बढ़ाई जाती है। अब अपना ऑप्शन सोचिए, क्या हो सकता है इसका आंसर? आपने सोच लिया होगा कि क्या हो सकता है। देखिए, बात हम करें प्रतिकूल प्रभाव नहीं है, यानी प्रतिकूल अनुकूल प्रभाव है वो, ठीक है, प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। सिंचाई से फसल पैटर्न बदला जाता है। अब ये देखा जाए तो प्रतिकूल प्रभाव है, नहीं की बात नहीं हो रहा है। ये जल गहन फसलों में शुष्क जल में उगाई जाती है, ये भी है, और मिट्टी का लवणीकरण करना, ये भी है। तो इसका मतलब जो है आंसर इसका डी होगा, फसल की उपज बढ़ाई जाती है। ये प्रतिकूल प्रभाव नहीं है, ये तो अनुकूल प्रभाव हुआ कि फसल की उपज बढ़ेगी, तो ये तो अच्छी बात है ना। तो अनुकूल प्रभाव हुआ, तो हमसे प्रतिकूल प्रभाव नहीं पूछा गया है। तो प्रतिकूल प्रभाव नहीं पूछा गया है, अनुकूल प्रभाव पूछा गया है। क्वेश्चन घुमा दिया गया है प्रतिकूल प्रभाव नहीं बोल रहा है, पूछ लिया अनुकूल प्रभाव। देखिए कहाँ से कहाँ क्वेश्चन घुमा दी जाती है। तो इसका आंसर है फसल की उपज में वृद्धि करना, ये अनुकूल प्रभाव है, यानी प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक आंदोलन बहुउद्देशीय परियोजनाओं का प्रतिरोध नहीं है। देखिए, बहुउद्देशीय परियोजना जो बनाई गई थी उसके प्रति इन्होंने कोई प्रतिरोध नहीं किया था। और बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो होती है कभी कभी जग कल्याण के लिए भी होती है, लेकिन लोगों को नुकसान भी होती है। लेकिन बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई लेकिन लोगों ने प्रतिरोध नहीं किया। किस में नहीं किया? क्या वो नर्मदा बचाओ आंदोलन था, या टेहरी बांध आंदोलन था, या नवरदान था, या चिपको आंदोलन था? देखिए, क्वेश्चन आपको क्लियर है कि सामाजिक आंदोलन बहुउद्देशीय परियोजनाओं का प्रतिरोध नहीं है। किस में प्रतिरोध नहीं किया गया था? तो आप सोचिए, विचार कीजिए, देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है। आपने चुन लिया होगा। देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन ये भी बहुउद्देशीय परियोजना था, लेकिन इसमें प्रतिरोध किया गया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन में प्रतिरोध किया गया था। टेहरी बांध आंदोलन भी जो थी उसमें भी जो है सामाजिक लोगों ने मिलकर इसका विरोध किया था, क्योंकि इससे नुकसान हो रहा था। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन, टेहरी बांध आंदोलन, इसमें प्रतिरोध किया गया था, लेकिन हमसे पूछा गया है कि प्रतिरोध नहीं किया गया था। तो देखिए, नवदान में देखा जाए तो प्रतिरोध नहीं किया गया था, क्योंकि ये जनरल आंदोलन थी, इसमें कोई तरह का प्रतिरोध नहीं देखने को मिला। चिपको आंदोलन में देखा जाए तो ये बहुउद्देशीय परियोजना थी नहीं, सिंपल था। चिपको आंदोलन को पता ही है कि इसमें जो है पेड़ पौधे काटे जा रहे थे, तो इसको जो है लोगों ने इसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई थी। अब कन्फ्यूज़न ये रह गया कि नवदान भी सही दिख रहा है और चिपको आंदोलन भी सही दिख रहा है, तो हम जाएँ किस पे जाएँ? दोनों ही सही है दोस्तों, कोई गलत नहीं है, दोनों ही सही है आंसर। देखिए, ऐसे में एग्जामिनर भी आपका परीक्षा ले लेता है अच्छा खासा कि आप क्या करोगे, डी में जाओगे। डी भी नहीं था, और नवदान ने भी प्रतिरोध नहीं किया था,
जो है ये समाज आंदोलन बहु परियोजना के अंतर्गत। अगर देखो, अगर ऐसा सिचुएशन बनता है आपके समक्ष कि आपको लगता है कि दो ऑप्शन सही होंगे तो दोनों ही लगा दो। हम क्या करें भाई, जब दोनों ऑप्शन आपने सही दे दिया तो हम क्या करें, हमारा क्या इसमें गलती है। आपकी तुक्का से थोड़ी बात बनेगा भाई, यहाँ पर हम लोग समझ के कर रहे हैं। तो आपने नवदान्य को भी कर दिया और चिपको आंदोलन की, दोनों ही परियोजनाएं जो थी प्रतिरोध नहीं किया था इन्होंने, ये बहु उद्देश्य परियोजना को प्रतिरोध नहीं किया था, तो ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। हम गलत कैसे कह दें। तो आप दोनों लगा के आप आ सकते हो, इसमें कोई गलत नहीं होगा। एग्जामिनर अगर समझदार होगा, चेक करने वाला होगा, तो इसको सही आंसर देगा, क्योंकि ये सही है तो हम गलत क्यों कहें। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे जो हमारे समक्ष क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी पर कोई बहुउद्देश्य नदी परियोजना नहीं है। अब देखिए, क्वेश्चन साफ और क्लियर कट बना दिया कि किस नदी पर कोई भी बहुउद्देश्य नदी परियोजना नहीं है। क्या ए सतलुज ब्यास पे नहीं है, या बी महानदी पे नहीं है, या सी नर्मदा पे नहीं है, डी यमुना में नहीं है। क्वेश्चन दोस्तों ऐसा ही पूछा जाता है। आप अपना ऑप्शन सोचिए, क्या आप ऑप्शन के जो है दे सकते हैं, क्या आंसर आपका सही हो सकता है। आप लगा लिए होगे कौन सा आंसर सही होगा। अब देख लिए, साफ क्वेश्चन है कि नदी पर कोई बहुउद्देश्य नदी परियोजना नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है सतलुज ब्यास पर बहुउद्देश्य नदी परियोजना बनाई गई है, और महानदी पर भी हमने क्वेश्चन में देखा था कि महानदी पर भी बहुउद्देश्य परियोजना थी। और अब रह गया नर्मदा और यमुना। तो आपको अगर लग रहा है कि इसका यमुना है, तो आप बिल्कुल ही सही सोच रहे हो, क्योंकि यमुना एक नदी है जहाँ पर कोई बहुउद्देश्य नदी परियोजना नहीं है, और ये कई एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। तो यमुना के साथ आप जा सकते हो। यमुना में कोई भी बहुउद्देश्य नदी परियोजना नहीं बनाई गई है। बाकी सतलुज ब्यास पे भी बनाई गई है, महानदी पे भी बनाई गई है, और नर्मदा में भी बनाई गई है। यमुना ही ऐसा नदी है, अछूता नदी है, जहाँ पर बहुउद्देश्य नदी परियोजना नहीं बनाई गई है। अच्छा, देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी ज़रूरी है एग्जाम व्यू से। देखिए, जल प्रदूषण के कारण निम्नलिखित में से कौन सा समस्या उत्पन्न होती है। क्वेश्चन क्लियर कट है कि इनमें से जल प्रदूषण के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। ए जल निकाय का अवसादन, ये तो बड़ी अजीब बात बोल दिया। जल जनित रोग, औद्योगिक कचरे का निर्वहन, जलीय जीवन का उद्भव। अब ये आपको देखना है कि कौन सा इसका सही आंसर होगा। आप चूज़ कीजिए, फिर हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है। अब देखिए, जल प्रदूषण के कारण निम्नलिखित में कौन सा समस्या उत्पन्न होती है। अब देखा जाए जलीय जीवन का उद्भव, ये तो गलत है ना, क्वेश्चन का ऑप्शन ही गलत दिख रहा है कि जल प्रदूषण से क्या जलीय जीवन का उद्भव होगा, क्या विकास होगा, कभी नहीं होगा। ठीक है। औद्योगिक कचरे का निर्वाह, क्या औद्योगिक कचरे का जल प्रदूषण से निर्वाह हो सकती है। सारे अगर गंदगी आप नदियों में फेंक देते हो तो क्या ये समस्या बच जाएगी, समस्या नहीं होगी, गलत है ना ये। और जल निकाय का अवसादन, अब जल निकाय का अवसादन का क्या मतलब है कि आप जितना मर्जी जल का प्रदूषण कर दो, उसको कहीं से बहा दो तो वो जल का प्रदूषण खत्म हो जाएगी। ऐसा होता तो सारी नदियाँ ही साफ़ हो जाती। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन गलत है, ए सी डी गलत है। यहाँ पर है जल प्रदूषण के कारण निम्नलिखित में से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। तो जल जनित रोग यानी जल से होने वाली बीमारियाँ, यानी वाटर डिसीज जो है डिसीज होती है। तो समझ गए होंगे कि जल जनित रोग जो होते हैं काफ़ी जल प्रदूषण के कारण होते हैं, जो कि बहुत बड़ी समस्या भारत के लिए है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ गया होगा, जो कि अंतिम क्वेश्चन है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा भारत द्वारा प्राप्त वैश्विक वर्षा का प्रतिशत दर्शाता है। देखिए, भारत को जो है एक वैश्विक तौर पर एक डाटा दी गई है, और डाटा कितना प्रतिशत जो है इस पर निर्धारित की गई है। अब यहाँ पर ऑप्शन बहुत दिलचस्प है कि सारे ऑप्शन अलग अलग हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न रहती है और ऐसे क्वेश्चन को आपको याद रखना पड़ता है। अब देखिए, ये जो है 96.5%, बी जो है 30%, सी है 4% और डी है 2.5%। हम अधिक से अधिक में भी जाएं फिर भी गलत होगा, कम से कम जाएं तभी भी गलत है। इसलिए ऐसे क्वेश्चनों को याद रखना पड़ता है, और ऐसे क्वेश्चनों को जो है क्वेश्चन को समझना भी ज़रूरी होता है कि कौन सा डेटा भारत द्वारा प्राप्त वैश्विक वर्षा का प्रतिशत दर्शाता है, यानी कौन सा डाटा वैश्विक वर्षा यानी विश्व के साथ वर्षा को दर्शाता है।
तो दोस्तों इसमें एलिमिनेशन की मेथड हम नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट है और डायरेक्ट क्वेश्चन को याद किया जाता है। यहाँ पर आप डायरेक्ट जो है इसका आंसर सी है 4%। 4% डाटा भारत द्वारा प्राप्त वैश्विक वर्षा का प्रतिशत दर्शाता है, यानी इसका आंसर सी हुआ 4%। तो आप 4% के जा सकते हो। और दोस्तों इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन का जो है सिलसिला ख़त्म हो जाता है इस चैप्टर का। अगला चैप्टर का और भी रहेगा इंपॉर्टेंट, तो आप This topic was till this. We will be do their next topic in the next part. If you like it, then please like, share, subscribe, and share the video as much as possible. Do not think, subscribe and save in your mobile. Thank you. तो क्या देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन है भाई, समझाना पड़ता है, टाइम लगती है, सिर्फ दिखा के हमने हटा नहीं देने हैं, और आपके नॉलेज को भी परखना है तो उसमें भी टाइम लगता है। तो आपको समझना है, सोचना है, विचार करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो तिरपान स्टडी सेंटर क्वेश्चन लाता है वो टेक्स्ट बुक पे आधारित होती है, और मुझे पता है कि एग्जामिनर हमेशा टेक्स्ट बुक्स के ही क्वेश्चन को महत्वपूर्ण बनाता है। हम इधर उधर भटक रहे होते हैं, सैम्पल पेपर गाइड सब में कर रहे होते हैं, लेकिन पेपर जो होता है टेक्स्ट बुक से आ रखा होता है, तो हम यहीं पे मार खाते हैं। तो इसी बात को एनालाइज करके तिरपान सेंटर ऐसा करता है कि मेरे पास जितने बच्चे पढ़ते हैं मैं उनको सही मार्गदर्शन ही देता हूँ, कभी गलत बातें बताना सही नहीं समझता हूँ, क्योंकि अच्छी बातें ही उनको विकास भी करा सकता है और देश के भविष्य को भी सुनिश्चित करेगा। तो यही बात मैं आप लोगों से भी कहता हूँ, ठीक है, इसलिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। This topic was till this. We will do their next topic in the next part. If you like it, then please like, share, subscribe and share the video as much as possible. Do not think, subscribe and save in your mobile. Thank you. तभी जो है अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर सर्च करके आपको प्राप्त होगा तो ये मिलेगा भी, कभी नहीं भी मिलेगा। तो इससे अच्छा है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये भी रहेगा कि तिरपान स्टडी सेंटर जो है 8 से लेकर MA तक के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। तो एक बार अगर आप यहाँ पर जुड़ जाइएगा तो कई साल तक तिरपान सेंटर में जुड़े रहिएगा। तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, अभी तिरपान सेंटर जुड़ के जो है आगे बढ़िए।